no introduction. So thank you so much, ma'am, to I'm join. speechless, and this, I would say, is the biggest success of my life, that Bisht ma'am admires me or loves me. She loves all of her students, and she has always showered her lot of love and support to me since my childhood, the elementary days. But yes, today, I mean, if she feels that, I have done something in my life, I think that is my achievement, nothing else. So Okay. thank you so much. So, thank you so much. Good evening to everyone. Good evening, all of you. How are you all? Good I hope evening, you are ma'am. doing good. I know Good the situation evening. is a little difficult for Good all evening, of ma'am. us. Good evening, all of you. I know the situation is little difficult, but we found some moments here, right? So we can just rejoice in them. And today, on the occasion of Mother's Day, we are here together. We are seeing each other, right? So welcome you all. So first of all, I would like to welcome and thank our guest for today, Mrs. Yojna Shahjan. Ma'am, we are so fortunate and overwhelmed that you acceded to our request to have a conversation with our children and their beloved mothers also. So today mothers are also joining. And thank you so much, ma'am. I would like to also pay my heartily tribute and extend my warm welcome to all the mothers on this occasion of Mother's Day. And this is the strength of technology only, that we are still having a conversation together, being so distant. And ma'am is from Germany. So this is the strength of technology. And Hindi, we call technology Tantra. So I thought I should tell this also, because we take Tantra as something else, but it's the technology. So welcome all the mothers, and also my cute and lovely children who are so enthusiastic always, and they are also joining one after the another, and I hope the participation will increase. Okay, thank you. Now, first of all, I would like to ask Jyoti ma'am to come forward and speak something on this occasion. As we know that संस्कृत जो है वो विश्व की सबसे पुरातन भाषाओं में से है, और जो संस्कृत की विशेषता है वो शब्दों से नहीं है, वो उसकी ध्वनि से है, और उसी को शायद हम नाद कहते हैं. तो मैं बुलाना चाहूंगी मातृ दिवस के अवसर पर श्रीमती ज्योति शर्मा जी को, जो हिंदी और संस्कृत की अध्यापिका हैं. मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे आज उपस्थित सभी माताओं के स्वागत हेतु अपनी प्रस्तुति दें. तो धन्यवाद ज्योति मैम. अब आप जो अगली आवाज सुनेंगे, सर्वोभ्याम शुभ संध्या. शुभ संध्या. जी मैम. मम नाम ज्योति शर्मा अस्ति. सर्वप्रथम सर्वेभ्यो नमः. नमो नमः. परम आदरणीय प्रबंधिका महोदया, अतिथि महोदया श्रीमती योजना शाहजी, मम शिक्षक गण त्वां सुस्वागतम. भवता से संयोगा संतोषकरः. अद्यः अहम् एकं संस्कृतं मातृ दिवस उपलक्ष्ये कविता पाठं करोमि. शब्दाः सन्ति: नास्ति मातृ समः छाया, नास्ति मातृ समः छाया, नास्ति मातृ समः गतिः, नास्ति मातृ समः छाया, नास्ति मातृ समः गतिः, नास्ति मातृ समं त्राणं, नास्ति मातृ समः प्रभा. There is no shade like mother, no resort like a mother, no security like a mother, no other ever-giving foundation of life. सत्यम शिवम सुंदरम. निश्चित रूप से ईश्वर की सृष्टि अत्यंत सुंदर है. मातृ पितृ रूपेण देव सर्वत्र अस्ति. प्रणति भावे व्यवहारमः स्वागतम शुभ वंदनम. महामननीय मेधाविन त्वदीयं स्वागतं कुरुः. कुर्मः गुरो गीर्वाण भाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः. परम श्रद्धा सुमंजलिभ्यां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः. मनसा सततं रमणीयं
Vachisa Satatam Vadaniyam. Actually, our duty is to act for the welfare of the world. So I want to say something for that. Manasa Satatam Ramaniyam. Vachisa Satatam Vadaniyam. Lokhitam Mam Karniyam. Lokhitam Mam Karniyam. Na bhog bhav niramaniyam, na cha sukh shayan shayaniyam, ahanisham jagariniyam, lokahit mam karaniyam, na jatu dukkham ganiniyam, na cha nij saukhyam mananiyam. कार्य क्षेत्र त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम मनसा सततं स्मरणीयम वचसा सततं वदनीयम। पुनः मम शिक्षकगण त्वां सुस्वागतम, अतिथि महोदया त्वां सुस्वागतम। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति मैम, धन्यवाद। आपने मेरी बात को चरितार्थ कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा था कि शब्दों से नहीं ध्वनि से होता है। So sorry to say, ma'am, I'm not getting your voice properly. Actually, can you please speak bit loudly? Okay, मैम मैं ये कह रही हूँ, आपने मेरी बात को चरितार्थ कर दिया है। हम कृतार्थ हुए आपसे ये ध्वनि नाद सुनकर। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। धन्यवाद। Okay, Manikya, is Manikya here? Manikya? Yes, ma'am. Are you getting my voice? Okay, so this is a surprise for you, ma'am. Yojana ma'am, this is a surprise for you. A small token of love from the students of Swasthayan, presented by Manikya. Yes, Manikya, Thank you so can much. go ahead. You have to turn on your video, okay, Manikya? Very good. Okay, so here is Manikya. Oh, so lovely, ma'am. Can you see? I cannot see, ma'am. Even I cannot see. Ma'am, you have to browse through the videos of the students. He is showing. Oh my God. Yes, really, it's amazing. Wonderful. Keep it up. Ma'am, did Yes, you I see can the see. video? I'm not able to see yet. Oh, okay. Wow. Manikya, you can This speak is something also, awesome. beta, so that you are on the. Thank you means so influence. much. Thank you, so ma'am, much. for giving your precious Send time it to to me. me. That's You're welcome. lovely. Brilliant. Your love Thank is you. overwhelming. Thank you. बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। Thank मानिकी, you आप so कौन सी much, क्लास में हैं? Manikya, you can turn on your video also so that ma'am can see you. Okay, we want to see you also, Manikya. Okay, so ma'am, he's Manikya of class 9th. Class 9. He's an artist. He's an artist. So very Wonderful well done, job. Manikya. Kudos to you. Thank you so much. In such less time, you drew to such a level of perfection. Thank you so much. Thank you so much. Okay. So as I said earlier, जिसको हमारी डायरेक्टर मैम इतना एडमायर करती हैं, उनको किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो अगर मैम का परिचय डायरेक्टर मैम ही दे तो हम सभी के लिए वो सबसे सुंदर होगा। तो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट रजनीकांता मैम, आवर डायरेक्टर. So please welcome Mrs. Yojana Shah Jain ma'am. Thank you. Thank you, Shraddha ma'am. Yes, can you all hear me? Yes, yes. Yojana? Yes, Yojana? ma'am. Good, Yes, good. ma'am. Very nice. So, good evening to you all. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. First of all, dear Dr. Yojana, and all the respected mothers, on behalf of the whole Swasthayan family, the teachers and the students, I welcome you all on this great occasion. Truly, I am speechless what to speak and what not to speak really. It's a great moment
that my student whom I taught 30 years back, 29 to 30 years back, is in front of me. And with so many accolades and acclamations to her credit. Really, it's a great moment for all of us. It's Mother's Day also. That's why I thought, let her talk to the mothers also. मैं ये चाहती थी क्योंकि आज ये मदर्स डे है, तो वो मदर से भी बात करें, और बहुत अच्छा होगा कि अगर हम हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि मदर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, तो हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा योजना का, मेरे लिए तो वो आज भी वही योजना है, छोटी सी क्लास 7th में पढ़ती थी। Yes. जब मैंने उन्हें लास्ट पढ़ाया था, तो मेरे लिए तो आज भी वही योजना है। तो मैं थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दे दूं। उनका इंट्रोडक्शन इतना बड़ा है कि उसे तो पूरा करना संभव नहीं है, लेकिन शॉर्ट में मैं बताऊंगी जो उनके मेन अचीवमेंट्स हैं। देखिए, इस समय एट सच अ स्मॉल एज, यंग एज आई कैन से, उन्होंने अपनी एक कंपनी, उनकी अपनी कंपनी है और वो उसकी सीईओ है। इसका नाम है हेल्थप्रेक्स, और वो इस समय बर्लिन जर्मनी में है, वहां से हमारे साथ जुड़ी है। प्रोफेशनल को अगर मैं थोड़ा सा पीछे करूं, इसके बाद वो है प्रेसिडेंट जर्मनी हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स काउंसिल ऑफ द ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये वो जर्मनी में है। इसके अलावा वो फाउंडर ऑफ लिटरेरी ग्रुप, शॉर्ट नेम इज लिपि, लिटरेरी इंटेलेक्चुअल्स एंड पोएट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसके अलावा वो रीजनल प्रेसिडेंट हैं यूरोप की फॉर पोएट्री एंड लिटरेरी ग्रुप industrialist. This I don't know. Now, besides this, she is a writer, she is a poet, she is a host of TV programs, what not she is doing. She is doing so many things, and she has already written two books, and third book is yet in print, and she has got her book कागज पे फुदकती गिलहरियां is already published by Bharatiya Jnanpith. Very prestigious. It's really very prestigious to get your book printed by Bharatiya Jnanpith in 19. और उन्हें श्रेष्ठ साहित्य सृजन सम्मान मिला है इंडिया से। और जब वो इंडिया आई थी तो वो प्रोग्राम मैंने भी पूरा देखा था, उसका रिकॉर्डिंग मैंने देखी थी, and I was really proud of her when I saw her, and since then only then we are in touch with. Now, वो एक टीवी प्रोग्राम है, टीवी टॉक शो है, 10 न्यूज की भी होस्ट हैं, और इसमें वो जो सेलिब्रिटीज हैं, द एमिनेंट पीपल ऑफ इंडिया वर्किंग अब्रॉड ऑल्सो, वो उनका इंटरव्यू लेती है, उनसे बात करती हैं, और फिर हमें भी इसका एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम भी उसे ज्वाइन करके देखें। वो इतने सारे काम एक साथ कर रही हैं। मैंने योजना से पूछा एक दिन, मैंने कहा योजना, हाउ डू यू मैनेज अ बैलेंस बिटवीन सो मेनी थिंग्स यू आर डूइंग, यू आर अ मदर ऑल्सो, और 2 बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, और बर्लिन में फॉरेन कंट्रीज में आपको पता है कि कोई डोमेस्टिक हेल्प जो है अवेलेबल नहीं होती है, तो कैसे आप ये सब बैलेंस करती हो। तो योजना ने बोला कि मैम, आई डोंट वेस्ट माई सिंगल मूवमेंट, मैं अपना एक भी मूवमेंट जो है वो वेस्ट नहीं करती। सो if you want to do something in your life, naturally, definitely, you have to learn how to make the best use of time and not to waste the time. योजना को जब मैंने पढ़ाया था बागेश्वर में महर्षि विद्या मंदिर में, she was the best student of the school. योजना की बहुत सारी मेमोरीज होंगी, और हम लोग की, हमारी भी बहुत सारी मेमोरीज हैं। हम जब अभी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, तो हम पुराने स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे। योजना, Swati Kakkad is also in this program today. I had sent the invitation to her also. She is also in this program, right? Wonderful. Yes. So students, बच्चों, what I have to say to you, just see that because she was a very good, the best student of the school. That's why. Now you can have many questions. You can ask her what she used to do as a student. एंड आज देखिए वो पोजीशन कैसे होल्ड कर रही हैं, और इतनी यंग एज में वो कहाँ पहुंच गई हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम योजना का एक इंटरेक्शन अपने बच्चों के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपनी मदर्स के साथ रखें, ताकि हमें उनसे मोटिवेशन मिले।
एक समय होता था योजना कि जब हम बोलते थे आप सुनते थे, अब समय आ गया है आप बोलेंगे और हम सुनेंगे. I'm really proud of that such moment has come in my life, that now my student will speak and I listen to her and I learn from her, right? So thank you so much. Thank you so much for sparing your valuable time for all of us. And now we would like to hear something from you that we can enjoy, that we can be inspired. Our students can learn something from you, our mothers can learn something from you, and our staff can learn something new, right? Yosna? So now. Thank you so much, ma'am. I'm today really overwhelmed and so glad to be here. I would say this is like a golden opportunity for me, and so I'm so delighted because I always love to interact with the young minds, young pure souls. It's kind of rejuvenating. And it is happening on the Mother's Day. And my daughters today, I have two daughters, and they asked me to cancel all my meetings because Sundays are very busy for me. Otherwise, Saturdays, Sundays, we do all our workshops, meetings, and the company related things mostly on the weekends. And they said, no, today you will not work at all. You will just take rest. So I had to cancel all my meetings, but I said, no, I will keep this one because this is very important. My teacher has asked me and I have to do that. And so I was so much looking forward to this. Thanks to all the lovely children, the entire staff. Bisht ma'am, I mean, you guys are so fortunate, I must say, that you are getting this, Bisht ma'am as your umbrella of education. She is with you. You are really so fortunate because she is one of the best teachers I have come across so far. She loves all her children, but at the same time, she makes sure कि किसी की कोई specific requirement है, किसी बच्चे को जो चाहिए वो पहचानती है उसको, और उसके लिए वो अपनी तरफ से जो कर सकती है वो करने की कोशिश करती है. मुझे याद है महर्षि विद्या मंदिर जब शुरू हुआ था, it was I think 1990-91 time frame. स्कूल में लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ हमने शुरुआत की थी, और उस टाइम पे बागेश्वर में कोई और इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था. उससे पहले हम लोग एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, और उसके बाद जैसे ही ये स्कूल शुरू हुआ हम लोग इसमें जाना शुरू किया हम लोगों ने, और मैम ने अपने सिंगल हैंडेडली उस स्कूल को खड़ा किया जिसमें मेडिटेशन और योगा उसके कॉर्नर स्टोन्स थे. और वो इतनी अच्छी फिलॉसफी है जिसमें मुझे लगता है कि अगर कोई भी स्कूल उस फिलॉसफी को लेकर आगे बढ़ता है तो उसके बच्चों में सिर्फ लर्निंग की बात नहीं होती है, बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स और एज अ ह्यूमन बीइंग आप बहुत अच्छे से डेवलप करते हो. तो मैम आपके लिए और सभी टीचर्स के लिए मैं 4 लाइंस अपनी लिखी हुई कहना चाहूंगी. उससे शुरुआत करती हूँ कि जिनकी छांव के तले खिलती हैं नई कोपलें, जिनकी छांव के तले खिलती हैं नई कोपलें, पुष्पित होती वल्लरियां और खिले वन उपवन नए, ऐसी गुरु कृपा की छांव, ऐसी गुरु कृपा की छांव सदा सदा शब्द आंगन में खिलती रहे. प्रार्थना ईश्वर से बस यही कि वट वृक्ष की भांति गुरु कृपा हमेशा हमें मिलती रहे. वट वृक्ष की भांति गुरु कृपा हमेशा हमें मिलती रहे. वंडरफुल मैम. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. और आज हमारे साथ बच्चे भी हैं और मदर्स भी हैं. टेक्निकल कुछ लिमिटेशंस होती हैं इन मीटिंग्स में, बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं, बट जो टेक्निकल लिमिटेशन थोड़ी होती है कि हम लोग आप एक दूसरे को एक साथ ऐसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते. बट फिर भी मैं चाहूंगी कि हम इस मौके का जितना ज्यादा अच्छे से अच्छा यूज कर सकते हैं वो करें. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द चिल्ड्रन टू अनम्यूट देमसेल्व्स. अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज आएगी तो हम म्यूट कर लेंगे, अदरवाइज आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप लोग अनम्यूट कर लें. तो मैं कुछ बच्चों से उनके नाम और उनकी मम्मा से उनके नाम जानना चाहूंगी. सबसे पहले just unmute yourself. Yes, children, you can unmute yourself. क्योंकि आज हमारे साथ बहुत वाइड रेंज एज रेंज के बच्चे हैं. आई थिंक क्लास 3rd से मैम, 3rd से 9th तक. यहाँ पे सबसे छोटा बच्चा कौन सा है, या सबसे छोटी क्लास के बच्चे कौन से हैं जो मुझे अपना नाम बताएंगे? Hi. Good evening, ma'am.
Good evening. बोलना पार्थ बिष्ट. आपका नाम पार्थ है बेटा? डॉक्टर शिखा सम्मल जी के यहाँ से. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. चलो जल्दी से ऐसा करते हैं, जो भी बच्चा बता सकता है वो मुझे बताएं कि आज आपने मदर्स डे पे अपनी मदर्स को क्या गिफ्ट किया. कुछ गिफ्ट किया आपने? Yes, you can raise your hands. Anyone wants to tell? अच्छा, किसी भी बच्चे ने अपनी मम्मा को कुछ गिफ्ट किया आज मदर्स डे पे? It can be a gift, it can be a promise, it can be just to make her rest and you doing some stuff, things like that to make her day special. Yes, Sanvi, Vivan, Palak and Naitik have raised their hands. Wonderful. So- हाँ जी, बताइए बताइए. Okay, yes, Sanvi. What did you gift? Ma'am, my name is Aditya Tiwari. Okay, Aditya is there. Okay. Yes, Aditya, what did you gift your mother? मैम, मैंने 2 चीज गिफ्ट की, एक तो प्यार और एक कार्ड. Oh, Wow. So lovely. Okay, so lovely. Okay, yes, Vivan. प्यार तो सबने ही दिया होगा. किया और एक कार्ड दिया. कार्ड दिया. Very good. Okay. बहुत अच्छा. Yes. बहुत अच्छा. Acha. Vivan, you want to say something? Turn on your mic, beta. कल को भी बहुत ही तारीफ Hi. What did you gift? चलो मैम A card. A card. Okay, good. And a card. Okay, Palak. Yes, what did you gift, Palak? A card and a painting. Card Wow, and a very good. painting. Okay, very good. Okay, Naitik, what did you gift? A greeting card. Greeting card. Okay, lovely. Yes, Sarthak Tiwari. What did you give, beta? Hello, ma'am. Hanji? Hello, Okay, I think he's saying Okay, great. ma'am. तो बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने अपनी मम्मा को गिफ्ट दिया है, बहुत अच्छी बात है. और जिन्होंने नहीं दिया तो एक गिफ्ट आइडिया मैं आप लोगों को दूं आज. Yes, मैं ma'am. गिफ्ट आइडिया आप लोगों को दे रही हूँ. What Yes, about gifting your moms with a dream today? Okay, so you know what is a dream? Yes, ma'am. Yeah, जो आप रात में देखते हैं वो ड्रीम होती है बेटा. Ma'am, सपना. सपना. हाँ, तो सपने का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बताएगा? सपने के 2 मतलब होते हैं, 2 तरह के सपने होते हैं. अपने सपनों को पूरा करना. हाँ, तो आपका क्या सपना है? डॉक्टर बनना. Very good. जी, तो जनरली जब भी हम सपनों की, वेरी गुड, जब भी हम सपनों की बात करते हैं और हम इंडियन कंटेक्स्ट में पेरेंट्स से या बच्चों से पूछते हैं कि सपना क्या है आपका, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी एंड अप विद आवर करियर रिलेटेड ड्रीम्स, इजंट इट? और स्पेशली इंडियन पेरेंट्स की भी हम बात करें, खासकर अभी सारी मॉम्स हमें सुन रही हैं, तो जब हम सपने की बात करते हैं अपने बच्चों के लिए, सो इट्स मोस्टली अबाउट द बिग एकेडमिक ड्रीम्स, द करियर ड्रीम्स, विच इज गुड. बट टुडे क्योंकि आज ये बच्चों का टर्न है टू गिफ्ट समथिंग टू देयर मॉम्स, मुझे लगता है जो गिफ्ट आइडिया मैं आपको देना चाहती हूँ वो सिर्फ फ्यूचर करियर का नहीं है, बल्कि थोड़ा सा अलग हटके है. और वो पता है क्या है? वो है the dream of developing as a loving, caring, compassionate, responsible citizen of a country or a global citizen. अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं, वहां सेटल होते हैं, तो भी आप एक ग्लोबल सिटीजन हैं. आप अपने देश के लिए तो प्यार रखेंगे ही, लेकिन साथ ही ह्यूमैनिटी के लिए, सभी लोगों के लिए प्यार रखेंगे. So what about gifting this dream to your mothers today कि आप एक रिस्पॉन्सिबल, कंपैशनेट, एक अच्छे इंसान बने. ठीक है? Okay, agreed? Yes, All of ma'am. you? So you Yes, promise ma'am. that today you're going to tell your moms that, yeah, you're going to tell your moms that, Mama, I will become a good student of my school.
I will become a good, responsible, reliable friend of my friends. And जब मैं बड़ा हो जाऊंगा या बड़ा हो जाऊंगी, तो I will grow as a thought leader, a compassionate, responsible citizen of a country. Right? Yes, ma'am. Okay. तो अब हम इस dreams की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. So why do we dream? Is it important to dream? And why we need to dream? तो बच्चा बता सकता है मुझे? क्योंकि dreams doesn't only mean that what you dream while asleep. It also means that what you deeply wish to come true one day. है ना? So these dreams are actually, I would say, the daydreams. And if you're very, very passionate about it, then it will come and trouble you at nights also. And you will work so hard to make those dreams come to reality. किसी ने कहा है, just hear this wording, to accomplish great things, we must not only act, but also dream, not only plan, but also believe. कोई बच्चा मुझे एग्जाम्पल देना चाहेगा अपनी ऐसे एक सपने का? चलिए मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा इंसिडेंस. जब हम महर्षि विद्या मंदिर में हम पढ़ रहे थे, तो हमारे शायद मैं 6th या 7th क्लास में रही होंगी, और बिष्ट मैम हमारी स्कूल प्रिंसिपल थी, जैसा कि मैंने पहले बताया. तो हम लोगों के स्कूल में 4 हाउसेस बने हुए थे कलर्स के बेसिस पे, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, आई थिंक. और उस समय हमारे उन हाउसेस में हर हफ्ते कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन्स होते रहते थे. तो एक कॉम्पिटिशन जो मुझे याद आता है वो था टेल योर ड्रीम. सो उसमें आपको अपनी बस कुछ भी ड्रीम आपको शेयर करनी है. और if I remember correctly, in that competition, that dream I had shared that day was that my breakfast is in London, lunch is in Japan, and dinner is in America, something like that, without knowing the geographical differences, the limitations. But dreams are dreams, right? So I got some prize for dreaming this actually. I don't remember, it was first, second, or whatever. But actually, at one point, I was, there were occasions, but there was a situation that my breakfast was in India, lunch was in London, and dinner was in New York. And so kind of that dream came true. But that was just because my flight to New York was had a changeover in London. So that's the reason my lunch was in London and dinner was in breakfast. Sorry, dinner was in New York. So the whole idea here is that, dream big, dream your head and heart out, because dreams are the first step towards turning them into reality one day. Correct? So, ये एक चीज है जो मैं आप लोगों से आज पूछना चाहती हूँ. अभी तक हमने बात की कि आप लोगों की क्या क्या ड्रीम्स हैं. मैं मदर से पूछना चाहती हूँ कि आपकी अपने बच्चों के लिए क्या ड्रीम्स हैं. Oh, good question. Okay, yes, anyone, any mother? Please raise your hand. Yes. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Yes, I can hear you. Myself, Dr. Shikha Sammal from Haldwani. I am a working mother of 2 daughters. All I dream about my kids is that they become a very good citizen. Wonderful. I just want to have them a helping hand, a compassionate heart, and always hands to help somebody in whatever way they can. As currently we are facing a very severe pandemic wave in India, and I'm busy working day and night in my government duties. But it is that I want to give them as a legacy to be selfless work to others. Yeah, wonderful. That's great. But anything that from a career point of view you want them to focus on? Ma'am, from career point of view, I just want them to be very accurate in doing whatever they want. I want to be them to be very precise and to be focused in whatever they want to do and pursue in their life. It's a very good answer. That's just a direction, not a compulsion to impose on the children that, okay, Yes. you need to do this, you need to be this or that, otherwise the life is a failure. Yeah. Anybody else? Thank you so much.
कोई और मदर बताना चाहेंगी वो क्या बनाना चाहते हैं अपने डॉटर या सन को? टीचर्स में से कोई जो मॉम्स हैं? Jyoti ma'am is trying to speak. Jyoti ma'am, आपकी आवाज क्या आ रही है? आप कुछ बोलना चाह रही हैं ज्योति मैम? हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आप ईयरफोन हटा दीजिए, शायद मे बी माइक में कुछ प्रॉब्लम हो। निकाल दीजिए उसे, अनप्लग कर दीजिए मैम। म्यूट हो रखा है मैम, अनम्यूट कर दीजिए ज्योति मैम, अनम्यूट कर दीजिए। नहीं आ रही है ज्योति मैम की आवाज नहीं पहुंच पा रही। ओके फाइन, नो इश्यूज। और कोई कुछ बोलना चाहता है बच्चों के को लेके आपके सपनों के बारे में? क्योंकि सपने ऐसी चीज है जो हम भी देखते हैं और हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत सारे सपने देखते हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इंडिया में ज्यादातर ये सपने आपके करियर से रिलेटेड होते हैं और अभी तो चीजें काफी बदली हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियर बने, लॉयर बने, डॉक्टर बने, है ना, जो बहुत अच्छी बात है। पर एक चीज जिसके बारे में आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी वो है एक और करियर जिसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। राइट? हैव यू हर्ड ऑफ दिस? आप सबने ये वर्ड सुना होगा। Yes. So this may be a heavy word for our young students, so I will try to explain it in simple words. When we become a doctor, engineer, lawyer, chartered accountant, etc., this is good. We are creating a good life for ourselves, our family. But when we become an entrepreneur, we are creating a life for many more people because we are generating employment. We are creating companies, हम लोग generate करते हैं businesses. So बच्चों, entrepreneur का मतलब होता है वो जो अपना बिजनेस, अपना एंटरप्राइज शुरू करता है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, नया आइडिया हो या पुराने आइडिया को आप इम्प्रूव कर रहे हो। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलते हैं बच्चों? कोई मुझे बोल के दिखाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। Very good. Yes. So actually in India, our education system has always been designed in a way to create people who can work in a system. Yeah. I hope some of you will agree with me. You know, that kind of education system, it's like we nurture our people, we in a way that they fit into a existing system, but we don't provide them the exposure that the students going forward become thought leaders, be innovators, scientists, create new businesses, be entrepreneurs. That's the reason India mein aaj bhi hum R&D ki baat karen, so that percentage of innovators, of researchers, of scientists is very low. While on the other hand, if you look at the numbers, the statistics, for India to grow and shine, entrepreneurship is a need of the hour. So because this is a wide range of children and I'm seeing some very young faces here, children from grade 2, 3rd, 4th, उनको अब इतना कॉम्प्लेक्स में बातें नहीं बताना चाहती, पर क्योंकि मॉम्स भी यहाँ पर हैं तो मैं इस टॉपिक को जरूर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहती थी। और टीचर्स यहाँ पर हैं और टीचर्स ही और स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा जरिया होता है जो किसी भी बच्चे की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
तो मैं इनकरेज करूंगी कि बच्चे जाकर पढ़ें। कई सारी कंपनीज हैं, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के बारे में पढ़िए, हेनरी फोर्ड के बारे में पढ़िए, बिल गेट्स के बारे में पढ़िए, स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़िए, धीरू भाई अंबानी के बारे में पढ़िए, रतन जी टाटा के बारे में, नारायण मूर्ति के बारे में पढ़िए। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस तरह का कोई करिकुलम नहीं है जो हम बच्चों को ये सिखाएं कि कैसे हमें रिस्क टेकिंग बनना है, जो कॉर्नर स्टोन है एंटरप्रेन्योरशिप के, उसकी तरफ बढ़ना है। क्योंकि ये बच्चे अभी हमारे इतने यंग हैं कि इनको हम जिस डायरेक्शन में मोड़ेंगे ये उस डायरेक्शन में जाएंगे, राइट? तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जस्ट वांट टू कन्वे दिस स्मॉल मैसेज दैट whenever we think of careers, you know, and sow that seed, that dream in the minds of our children, we shouldn't be just those conventional parents who say that, you know, become a doctor, become an engineer, become an IAS officer, take a safe job, take a government job, take a high paying job, because yes, of course, many children may have the knack for this, many children may be interested in these things, but there might be some percentage of children who have some new ideas, they want to do something of their own, and so they should be encouraged, they should be nurtured, they should be cultivated, their ideas should be cultivated, and as a system, as a country, as a school, as a university, we should support them when needed, and then we will get the entrepreneurs, the founders like Mark Zuckerberg and Henry Ford and Bill Gates and Steve Jobs in India also of that scale, you know. So yeah, so and any questions on this? Ma'am, and I can assure you, under the guidance of Director Ma'am, we are going in that direction only. Wonderful, because you know the world is changing, and in next 2 decades, most of the jobs that you see today will not even exist. Exactly. So what is needed is not to train the children to pick up specific jobs. So मुझे जो भी डॉक्टर एक मॉम थी, डॉक्टर सिद्धानी, राइट, उनका जवाब बहुत अच्छा लगा कि आप कि आप ये ना करें कि आपको यही बनना है या इस तरह की ही जॉब करनी है। बच्चों में आप रिस्क टेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, you know, and very, very important to become a compassionate, caring, law-abiding citizen. ये values हम inculcate करें, तो वो आगे जाके जो भी करेंगे, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। और failure से घबराना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अगर आपको अपनी जर्नी बताऊं, तो you know, I'm almost 40 right now. And as ma'am mentioned, I own a company that is gradually making remarkable presence in digital healthcare domain. In simple words, if I tell you what we do, so we are trying to modernize, digitize the Indian healthcare setups in India and many other countries. So मैंने इसको recently शुरू किया, और इससे पहले मैं almost 16 years I held senior positions in the topmost pharmaceutical companies, multinational companies, and here in Germany also I worked with a very well-known European pharmaceutical company. But then I had this passion to you know, start this firm. And I told myself it was very hard to come out of a comfort zone, to you know, say no to a heavy paycheck and say that, okay, I will just leave everything and start something of my own from the scratch. And that was a life-changing moment for me. But yeah, I took that challenge, saying to myself that if I don't do it now, then probably never. And I don't want to die with a regret that I didn't even try, because I have already some regrets in my life that I didn't try a couple of things when I was younger. And I just fell into the trap of, you know, catching hold of easy success. ठीक है, ये जॉब है, ये आपने कर ली, यहाँ पे इतनी सैलरी मिल रही है, ये प्रमोशन मिल रहा है, आप यहाँ चले गए, types. So this point I said, no, I will live up to this challenge, and I will listen to my heart this time and try this out. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? Failure होगा तो देखेंगे. There will be some learning out of it, right?
And today I'm really proud that we are doing fine. We are growing, and yeah, I mean, it would have been really pity if I had not taken up the challenge and had not tried it, because if you are associated with any company, any firm, you are just doing a small piece of the whole thing. You know, whatever you are doing, you are implementing the strategy of the senior management, but in your own something of your own, you're responsible for the bottom line, you're responsible for the failures, for the success, and everything. So yeah, I'm happy with that. And apart from that, as ma'am mentioned, I'm a writer, a speaker, a poetess, and a Hindi activist. जी, तो मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ पे खुद जर्मन सीख रही हूँ और यहाँ के बच्चों को मैं हिंदी सिखाती हूँ. सो एक छोटा सा हमने ग्रुप बनाया है लिपि के नाम से, जिसके अंदर हम हिंदी की पाठशाला चलाते हैं. अगर कोई बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इंडिया से, तो उनका भी स्वागत है कि वो इसमें आए, क्योंकि मुझे ये महसूस हुआ कि जर्मनी में और बाहर किसी भी देश में रहकर जो NRIs के बच्चे हैं, वो बाकी चीजें तो कितनी भी सीख लें, लेकिन हिंदी को कहीं ना कहीं कुछ सालों के बाद भूल ही जाते हैं. मतलब बोलना, वाचक भाषा तो फिर भी रहती है क्योंकि घर में पेरेंट्स हिंदी बोलते हैं, पर लिखना पढ़ना भूल जाते हैं. तो इसी के कारण हमने ये हिंदी की पाठशाला शुरू की, जिसमें थोड़े से ही सही बच्चे आते हैं और रेगुलर आते हैं और बहुत अच्छे से उसे एंजॉय करते हैं. और बहुत खुशी होती है मुझे कि मैं यहाँ पे रह के भी अपने लोगों से, अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि वृक्ष, एक मजबूत पेड़ वही होता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है. बाकी तो झाड़ झंकार होते हैं जो समय की धूल के साथ उठ जाते हैं. तो इसलिए आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, लेकिन अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहना बहुत बहुत जरूरी है. मेरा एक और मकसद है कि हम ये मैं एक मैसेज आप लोगों तक आज पहुंचाना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि हिंदी का हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने आज शुरुआत संस्कृत से की, जो बहुत जरूरी है. और आप सब जानते हैं कि संस्कृत कितनी परिपक्व और कितनी प्योर लैंग्वेज है. इसको साइंटिफिकली प्योर लैंग्वेज है, इसको कोई नकार नहीं सकता. पर कहीं ना कहीं हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, वो भी खोती जा रही हैं. मैं कुमाऊनी बहुत अच्छे से बोल नहीं पाती, लेकिन मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, कि कुमाऊनी और गढ़वाली के जो साहित्यकार हैं उनको भी हम लेकर आए, एक साथ बांधें और उसके बाद कुछ डिजिटल कुछ शुरू करें. वो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन आप लोगों को, क्योंकि आप हल्द्वानी में हैं, कोई ना कोई जिन्हें भाषा से प्यार है, लैंग्वेज से प्यार है, वो जरूर इसको कोशिश करें कि आप कुमाऊनी गढ़वाली को खत्म ना होने दें. क्योंकि हिंदी के आगे कुमाऊनी गढ़वाली वैसे ही हो जाती हैं जैसे अंग्रेजी के आगे हिंदी हो जाती है. है ना. तो देखिए, इसमें वन मैसेज आई वांट टू गिव इज कि ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश ना सीखें, बिकॉज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज और इंग्लिश पे अच्छी कमांड होनी ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ इंडिया से बाहर ही नहीं, इंडिया में भी कई स्टेट्स में आज भी इंग्लिश इज द यूनिफाइंग लैंग्वेज. करेक्ट. और फ्रॉम अ जॉब पर्सपेक्टिव ऑल्सो हिंदी को उस लेवल तक आने में टाइम लगेगा. बहुत सारा काम हो रहा है इस बीच जो मैं देख रही हूँ, लेकिन बहुभाषी बनिए, बहुत सारी भाषाएं सीखिए. बस मकसद और संदेश ये है कि अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को छोड़िए नहीं. मैं हर किसी को हमेशा ये कहती हूँ कि हिंदी बोलकर शर्माए नहीं और अंग्रेजी बोलकर इतराए नहीं. सब कुछ सीखें. हम जर्मनी में रहते हैं, जर्मनी में जर्मन के बिना काम नहीं चल सकता, तो जर्मन सीख रहे हैं, थोड़ी बहुत टूटी फूटी बोल लेते हैं. लेकिन अपने बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें हिंदी भी उतनी अच्छे से आए जितनी अच्छे से इंग्लिश आती है, और जर्मन वो सीख ही रहे हैं. तो ये मेरा एक आप लोगों के लिए संदेश है. और मैंने बहुत सारा बोल लिया. अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कोई बच्चा या टीचर्स यहाँ पर जिसको पोएट्री छोटी सी बात करना चाहती हूँ. जैसे मुझे भी कुमाऊनी मतलब मुझे लगा कि सीखनी चाहिए, क्योंकि समझ में तो हमें आ ही जाती है, बचपन से सुनते हैं हम, तो समझ में आ जाती है. तो धनादी है एक्चुअली.
तो वो ग्रेट वर्कर है। तो मैं उनसे पहाड़ी में मतलब पहाड़ी में ही बोलती हूँ, तो वो घबरा जाती, कहती है डायरेक्टर मैम सुनेंगे तो डांटेंगी हमें। मैम का इसको मतलब मैम भी है। इसके पीछे तो भी एक रेशनल है, जी क्योंकि होता ये है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अगर आप वहाँ पे फोर्स नहीं करेंगे बच्चों को हाँ इंग्लिश के लिए, बिल्कुल, हाँ तो जी वो बिल्कुल, हाँ वो तो भाषा तब तक नहीं आती है जब तक यू आर नॉट पुश टू द कॉर्नर, यू नो। एग्जैक्टली या वो मैं बट देन डायरेक्टर मैम से वैसे शेयर नहीं कर सकती थी, तो आज मुझे इनडायरेक्ट मिल गया। I hope, ma'am, I didn't say anything against the agenda of the school. Okay. जी, कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें, या कुछ कोई प्रश्न है अगर आपके? Yes, children and mothers also. Anyone has any questions, so they can ask. They can raise their hands and they can ask the questions. आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी को हाथ रेज कर सकते हैं आप. Yes, anyone. Ma'am, I want to ask a question. Okay, Dr. Shikha Samal ma'am wants Yes, to ask. ma'am. Yes, ma'am. Please go ahead. Ma'am, as you told, you are 40 years of age. Same is the age of mine. And ours was a time of 80s when we had in the Kumaon, or you can say in the Uttarakhand, we have a upbringing of middle class when the resources were very much less. And our parents had to restrain to provide us a good education and everything out there. My father was also a teacher, and and my mother has to make efforts to make us give good education. So, ma'am, that discipline, that self-discipline, कहिए या that motivation, वो parents को देख के आ गई. अब हमारे बच्चों के साथ ये है कि we are earning, तो हमारे बच्चों को easily वो चीजें मिल गई मैम. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बिकॉज यू seems to give a lot of motivation to us, कि बच्चों में वो जो एक सेल्फ डिसिप्लिन है टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इस टाइम पे कोविड-19 की वजह से बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर से घर पे हैं. तो मैम वो जो डिसिप्लिन है कि अर्ली वेकिंग आवर्स बच्चों को कैसे डिसिप्लिन किया जाए, एंड वो जो छोटी छोटी चीजें हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपब्रिंगिंग एंड टू मेक अ वेरी गुड क्वालिटी पर्सन इन देम, वो उसके लिए I just want some tips from you. Yeah, so I will go quickly to the tips rather than giving a lecture, because वो high level हम सबको पता होता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए and all that. So what I do, I will share with you. मेरे बच्चे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन तो नहीं है, स्पेशली द यंगर वन, बट फिर भी कुछ चीजें हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, रिलीजियसली फॉलो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव मेड अ शेड्यूल फॉर देम that on the weekdays your movie time is this, your study time is this, wake up time is this, sleeping time is this, we religiously adhere to that, and on the weekdays we give them more liberty. तो उनको भी ये नहीं लगता है, कहीं ना कहीं बैलेंस रखना पड़ता है कि कितना आप बच्चों की सुने और कितना बच्चे आपकी सुने. अगर हम सिर्फ अपनी ही चलाते रहेंगे, if it is not a two-way conversation, a two-way agreement, then there will be conflict, and then there will be like more of, you know, forcing from your side, which is not a sustainable solution to any problem. Yeah. Second, in terms of value for money, we make it a point that you know, there's a certain amount of pocket money that we give them on a monthly basis. Yeah. And apart from that, and that we have defined कि आपके जो कौन से खर्चे ऐसे हैं जिसको पेरेंट्स बेयर करेंगे, और अगर आपको किसी दिन आपको कुछ आइसक्रीम खानी है, कुछ और आउट ऑफ द वे कुछ करना है या कुछ गिफ्ट खरीदना है, वो कहाँ से जाएगा? वो आपकी पॉकेट मनी से जाएगा, राइट? सो हम उनको उन पे अगर उस तरह का कुछ भी खर्चा करते हैं, it actually feels bad also when I ask her that you took that ice cream which is out of the you know, our schedule, so you have to pay for that. That was a €1 and you have to pay for that. And then now it has come to a level that she herself says कि ममा आपने आज हमने आइसक्रीम खाई थी और मैं आपको पैसे दूंगी. She is very particular about it. She comes back home and then she takes out her piggy bank and takes out the money and gives it to me. So कई बार मैं बोलती हूँ कि नहीं रहने दो बेटा, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से भी नहीं ममा, क्लियर होना चाहिए. It should be. Yeah. Secondly, we make them do some household chores. So it can be just folding the clothes, or, you know,
not doing the like putting the dishes in the dishwasher, या कहीं कुछ अलमीरा अरेंज करनी है और things like that. So for that हम उनको थोड़ा सा एक अमाउंट देते हैं, 50 सेंट्स दे दिए, 1 यूरो दे दिया ऐसे, और उससे उन्हें वैल्यू पता चलती है कि हमें इतनी मेहनत करके ये 50 सेंट्स या 1 यूरो कमाए हैं और हम एक आइसक्रीम खा रहे हैं तो उसमें इतना जा रहा है. सो दे हैव बिकम दैट काइंड ऑफ माइंडसेट एंड कैलकुलेशन दैट वी हैव टू स्पेंड द मनी properly and they value the money at the moment. So I think ये छोटी छोटी सी बातें हैं कुछ जो हम अपने घर के जो भी आपका जिस तरह का सेटअप है उसके हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हैं. The whole idea is that the things should not come very easy. They should know how to earn it. हम उन एफोर्ड कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगली जनरेशन उसे फॉर ग्रांटेड ले, क्योंकि हमने अपने बचपन में मेरे पेरेंट्स, हम लोग लोअर मिडिल क्लास से आते थे और मैंने देखा है कई फैमिलीज में जहाँ पे काफ़ी एफ्लुएंस था. आज मेरी ज़िंदगी में एफ्लुएंस है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसके अंदर हम बहे नहीं, उसको हम संभाल के रखें और मॉडेस्ट रहें और हमारे बच्चे उस वैल्यू को सीखें. I hope I answered your question to some extent. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Is any other question? Any student or any mother? Devshi is also there. Devshi is so silent. Devshi is not asking anything. Yes, Devashi. I have a question. Acha, Parth has one question. Very good, Parth. Yes, Parth, go ahead. Yes, sir. Good evening, ma'am. My name is Parthvish. I'm a student of class 6th. Ma'am, I have a question that how did you start your studies? Can you tell your syllabus? You should ask this question to Brist ma'am because I don't remember my syllabus now. And I think the syllabus has changed a lot over the years, isn't it? Yes, yes. Perhaps he is unable to ask the right question. But हिंदी में भी बोल सकते हो बेटा. What you want to ask? Syllabus थोड़ा सा perhaps, हाँ perhaps. Parth, हिंदी में पूछ लीजिए question. Yes, Parth, go ahead. Yes. आप हिंदी में पूछिए बताओ अपना बेटा. question. हिंदी में पूछो मैम, आपने कैसे स्टडी की? Ma'am, my question is that how did you start your studies? From when? So well. Study so well. Yes. I don't know. I mean, since my childhood, I had this, love for reading, and writing was my passion since very early age. I wrote my first poem, I think, at the age of 7 or 8. गांधी जी पे कविता लिखी थी मैंने. और सो पढ़ने लिखने का मुझे शौक था. I have 2 younger brothers जिनको पढ़ने लिखने का ज्यादा शौक नहीं था. तो वो कुछ और चीजें कर रहे हैं. बट मुझे पढ़ाई अच्छी लगती थी. और जब हम महर्षि विद्या मंदिर में जाते थे, मुझे याद है कि स्कूल की लाइब्रेरी में ज्यादा बुक्स नहीं होती थी. तो बिष्ट मैम अपने घर से मुझे बुक्स लाकर देती थी. समर वेकेशंस या कोई लंबी छुट्टियां पड़ती थी कि बेटा ये पढ़ना और उसके पीछे क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके लाना. सो देखिए, मुझे लगता है पढ़ने का जो शौक है ना, वो अगर आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको पढ़ने का शौक और ज्यादा वो चाव डेवलप होगा. और पढ़ने आज हम लोग इतना डिजिटाइज हो गए हैं, किंडल, आईपैड, एवरीथिंग, या बट स्टिल पढ़ना एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है इट्स टाइमलेस. इट्स अ टाइमलेस स्किल, इट्स अ टाइमलेस वर्च्यू. और कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा ही सही किसी भी तरह का फिक्शन, नॉन फिक्शन दोनों का बैलेंस बना के पढ़िए, क्योंकि हो सकता है इस एज पे अगर आप सिर्फ नॉन फिक्शन पढ़ेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा. हम लोगों के टाइम पे इतना ज्यादा टीवी का इतने सारे चैनल्स नहीं थे, लेकिन कॉमिक्स बहुत ज्यादा चलती थी और पेरेंट्स बहुत परेशान रहते थे कि बच्चे बहुत ज्यादा कॉमिक्स पढ़ते हैं. लेकिन आज कॉमिक्स वाला फॉर्मेट भी एजुकेशनल पैटर्न में अवेलेबल है. सो मेरे ख्याल से आज के रिसोर्सेज कहीं ज्यादा बेटर क्वालिटी हैं, इजिली एक्सेसिबल हैं. और आप बस एक बार शुरू कीजिए, उसके बाद आई एम श्योर कि आपको खुद से ही मजा आने लगेगा पढ़ने में. और अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता किसी कारण से, तो आप अपनी टीचर से बात कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगता है. क्योंकि मैं इस बात को रिपीट करना चाहूंगी, आज मैंने 2 चीजों की बात की. आज मैंने बात की आज मैंने एक तो बात की ड्रीम्स की और दूसरी बात की एंटरप्रेन्योरशिप की, राइट.
सो ये जरूरी नहीं है कि हर कोई एकेडमिक्स में ही अच्छा निकले, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, किसी की क्रिएटिविटी कुछ और तरीके से अच्छी हो सकती है। बहुत तरह के आज की डेट पे करियर ऑप्शंस हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप अपने आइडियाज लेके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और एक्चुअली जैसे मैंने कहा था, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए, खासकर भारत को अगर हम बात करें, तो एंटरप्रेन्योर्स की बहुत जरूरत है जो जॉब्स क्रिएट करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, नए आइडियाज लेकर आए। ठीक है, तो कभी भी खुद को कम मत आंकिए। आपके अंदर जरूर कुछ वो यूनिक क्वालिटी होगी जो आपको और आपके पेरेंट्स और आपका टीचर्स मिलके आइडेंटिफाई करेंगे और आपको उस एरिया में नर्चर करेंगे। राइट, सो मैं अपने फैमिली की बात बताती हूँ। आई हैव 2 daughters and the elder one, she is very good in academics, but जो छोटी वाली है उसको थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज और डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, और हमें पता है कि उसको हमें पुश नहीं करना है किसी चीज के लिए। हमें उसको अपनी तरीके से, उसका अपना ग्रोथ चार्ट है, उसका अपना लर्निंग पैटर्न है, हमें उससे उस पे चलने देना है। और श्योरली वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जो शायद और बच्चे ना कर पाए। सो हम उसे उस तरीके से देखते हैं, ना कि इस तरीके से कि इसको अभी इस चीज में दिक्कत हो रही है। किसी एक चीज में दिक्कत है, लेकिन जरूर वो किसी और चीज में बहुत अच्छा करेगी, इस बात का विश्वास है, और हम उसे उसी डायरेक्शन में उसी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। सो ये मेरा अपना एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, एंड इट सेज अ लॉट। सो आई थिंक या Yes, Parth, is your question answered? Ma'am, कंफ्यूज this कर is दिया मैंने पार्थ को। Thank you, ma'am. या hello, ma'am. This is Vishwas Gautam. यस सर। There's a question I have. How important is the role of father? And you know, and secondly, how constructively a father can contribute to a mother's journey of bringing up her child. Okay. May I throw the same question to you? First, you try to give an answer to the same. आप try कीजिए। I'm not married yet, so तो ये आपने बहुत जल्दी पूछ लिया। क्योंकि जब आप उस जर्नी के थ्रू जाएंगे तो बहुत सारे आंसर्स आपको खुद ही मिलते चले जाएंगे। और जब आप किसी को सपोर्ट करने की बात करते हैं तो उसके लिए आपको एक बुक नहीं लिखनी होती है, उसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं जो डे टू डे आपको खुद पता चलेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी वाइफ की तरफ, अपने बच्चे की तरफ। बट गोइंग टू योर क्वेश्चन, फादर प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। ऑफ कोर्स बोथ द पेरेंट्स, मदर ज्यादा क्लोज होती है, बट आज की सेटिंग में अगर हम देखें जहाँ पे दोनों पेरेंट्स अगर वर्किंग हैं तो दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों का इक्वल इम्पैक्ट होता है। यूरोप में फॉर एग्जांपल पेरेंट्स, बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो 1 by 1 बच्चों को अटेंड करते हैं बिकॉज ऑफ द द जॉब रिस्ट्रिक्शंस, द टाइम लिमिटेशंस एंड एवरीथिंग। सो इंडिया में थोड़ा सा है कि ये माना जाता है कि मदर ही प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होगी एक बच्चे के लिए, उसकी अपब्रिंगिंग के लिए। बट अगर आप दुनिया के और हिस्सों में देखें तो फादर का बहुत एक डे टू डे लाइफ में और मैनेजमेंट में, डे टू डे मैनेजमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और वो चेंज इंडिया में भी आना चाहिए, तभी मुझे लगता है कि मदर्स के लिए भी अपना करियर संभालना भी आसान होगा, और साथ में बच्चों की भी उस तरीके से, मतलब फुल इन ऑल द डिमेंशंस ग्रोथ हो सकती है जो हम कई और कंट्रीज के बच्चों में देखते हैं। बिकॉज फादर्स feel that kind of that they are responsible for their children's day-to-day things, whether it is the feeding or taking care of the house, cleaning and cooking and everything, or pick drop of the child or their exams or whatsoever. I promise to follow your advice, ma'am. Absolutely. Okay. Yes, Sanvi is having one question. Yes, Sanvi, you can go ahead. मैम एक्चुअली मैम जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बहुत मन करता है कि मतलब उनके मन में ऐसी चंचलता होती है कि वो उनके अलग अलग गोल्स होते हैं। जैसे कभी वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, कभी वो टीचर बनना चाहते हैं। तो मैम आपका भी कभी ऐसा ही गोल रहा था कि आपका एक ही गोल था? नहीं, ये सबके साथ होता है बेटा, और मैं भी बहुत भटकी हूँ, ये बनना चाहती हूँ, ये बनना चाहती हूँ, ये करना है, ये करना है, और हर बार ऐसा होता भी नहीं है कि जो आप चाहते हैं वो हो जाए,
है ना। लेकिन फिर आपको देखना होता है कि आपकी लाइफ को तो आपको ब्लॉक नहीं करना है, और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए आपको कौन सा रास्ता चुनना है। सो जैसे जैसे आपकी लाइफ में अलग अलग स्टेप्स आते जाएंगे, यू विल रीच ईच माइलस्टोन। आप 10th करेंगे, 12th करेंगे, उसके बाद आपके पास डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स आएंगे। उस समय आप लोग एक जेनरिक सलाह दे रही हूँ, ये इंडिविजुअल, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होगा, हर किसी के सर्कमस्टेंसेस होंगे, बट अपने स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई कीजिए। शुरू से आइडेंटिफाई आप करके रखिए कि आपको क्या चीज है ऐसी जिसमें आप अच्छे हैं, और कौन सी ऐसी चीज है जिसमें अगर अच्छे नहीं है तो आप फिर भी चाहते हैं कि उसको आप बेहतर करें। Yes, और ma'am. दूसरा, हॉबीज हर किसी में होनी चाहिए, क्योंकि कई बार अब हॉबी को आप कितना सीरियसली परस्यू कर पाते हैं, उसको की तरफ कितना टाइम दे पाते हैं, ये एक अलग फैक्टर होता है कि हॉबी के क्षेत्र में भी कई लोग अच्छा करते हैं और एक नाम स्टैब्लिश करते हैं, लेकिन हॉबी हर किसी के पास होनी चाहिए, वरना जिंदगी बहुत नीरस हो जाती है। अगर आप, क्योंकि आप कोई भी करियर पकड़ें, आप बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे, आप डॉक्टर बन गए, लेकिन अगर आपके पास कोई हॉबी नहीं है तो आपकी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो मुझे लगता है हॉबी चाहे कुछ भी है वो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको जिंदा रखती है, वो आपको लाइवली रखती है, डायनामिक रखती है। कुछ यू विल ऑलवेज देन स्ट्राइव टू टेक आउट टाइम टू परस्यू दैट हॉबी, व्हाटएवर अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन गिव टू इट। और ये एक डिफरेंस मैं इंडिया और अब्रॉड में देखती हूँ। मैंने बहुत सारे देश घूमे हैं, बहुत सारे देशों में रही हूँ, और जो मुझे एक स्टार्क डिफरेंस दिखता है वो ये है कि बाहर लोग अपनी हॉबीज के लिए एक्चुअली टाइम निकालते हैं, है ना, चाहे वो हाइकिंग हो, चाहे पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, व्हाटएवर, बट दे मेक अ पॉइंट कि उन्हें हॉबी के लिए टाइम निकालना है। तो एक ये चीज हमें इनकलकेट करनी चाहिए बच्चों में भी, कि सिर्फ उन्हें अगर पढ़ाई करानी है तो सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस ना कराएं, बल्कि उनकी हॉबीज को भी धीरे धीरे नर्चर होने दें। हो सकता है उनकी हॉबी इतनी स्ट्रांग हो, उस हॉबी में वो इतना अच्छा करें कि वही उनका करियर बन जाए, यू नेवर नो। तो गिव देम ऑल द एक्सपोजर, स्पेशली आज की, क्योंकि हमारी जो ये बच्चे हैं ये सब एलिमेंट्री फेज में हैं अभी, तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि इन्हें हर तरह का एक्सपोजर मिले, उसके बाद ये अपना रास्ता खुद चुने, ना कि हम इन पे रास्ता इम्पोज करें। Thank you so much, ma'am. Okay, next question is from Gaurav. Gaurav, you want to ask a question? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. I am Sarita Koranga. मैम, अभी जैसे ड्रीम को लेकर के, हॉबी को लेकर जैसे बात हो रही थी ना, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे बच्चे हैं, जैसे छोटी एज में तो बच्चे ड्रीम जो भी होते हैं उनके चेंज होते रहते हैं हर दिन, की अभी मैं ये बनूंगा, कल वो बनूंगा, ये बात हो चुकी है। तो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि हम किस एज में बच्चों का जो कैरियर ड्रीम है वो उस पर हम विश्वास कर सकते, कौन से एज पे? Very good question, but very difficult to answer because it is again based on individual circumstances. ये कहना कि एक पर्टिकुलर एज होगी, मान लो 17 रख दिया हमने, 18 रख दिया, 21 साल की, जब बच्चा इतने साल का हो जाएगा तब जो ये कहेगा हम उस पर विश्वास करेंगे। ये मेरा पॉइंट करना है, मेरे ख्याल से किसी का भी पॉइंट आउट करना बहुत ही मुश्किल काम है। मेरे ख्याल से हमें हर स्टेज पे बच्चों की सुननी चाहिए, उनको सीरियसली सुनना चाहिए, ये बहुत बहुत जरूरी है। चाहे छोटा सा बच्चा है, वो अपने आप में एक दुनिया है, वो अपने आप में बहुत सक्षम है, हमसे ज्यादा सक्षम है। हमें बस उन्हें सुनना है और समझना है कि उनकी जो अंदर की आवाज है ना, वो यूनिवर्स की किस आवाज से मैच करती है। तो कुल मिलाकर जो करियर रिलेटेड डिसीजन पॉइंट्स आएंगे उनके लिए अभी से बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि दुनिया बदल रही है, और अभी आप जो सोच के चल रहे हैं कि इस स्टेज पे ऐसा होगा वैसा होगा, एजुकेशन पॉलिसी भी इंडिया में नहीं आ गई है अभी तो राइट उसकी वजह से बहुत बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। एक्चुअली इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल ब्रिंग ट्रेमेंडस चेंजेस इन द करंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो जो हमने जिस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा है उसके कंपैरिजन में बहुत डिफरेंसेस आने वाले हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का अगर मैं सही समझ पाई हूँ तो यही जवाब है कि बच्चों को हर स्टेज पे सुनिए, उनकी बात को अनदेखा मत कीजिए।
आप उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं, बट ये मत समझिए कि आप जो कहेंगे वो ही फुल एंड फाइनल है। वो हमसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। आप उन्हें गाइड कीजिए, पर उन पे इम्पोज मत करिए। बाकी जहाँ पे डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स आएंगे वहां पे आप समय और जिस तरह के आपका सिचुएशन है उसके हिसाब से डेफिनेटली यू विल फाइंड द राइट वे, आई एम श्योर। If you point with your permission, if I can. Thank you. Ma'am, can I say one point? Yes, please Shraddha ji. Okay, जैसे गौरव की मदर ने क्वेश्चन पूछा तो सेम सिनेरियो मेरे साथ भी था। मेरा ब्रदर है, ही इज इन कॉलेज, ही इज इन फर्स्ट ईयर ओनली, ही वाज डूइंग HM। तो किन्हीं वजहों से ड्यू टू एन एक्सीडेंट सो हिज फादर पास्ड अवे। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उसने कहा नहीं मुझे HM ही करना है, को जो करियर गोल है। लेकिन पेरेंट्स कह रहे थे कि आपको थोड़ा मतलब अगर फ्यूचर स्टेबल चाहिए तो यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो। तो अब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में थोड़ा टसल हो जाता है कि अब क्या करें, क्योंकि पेरेंट्स को फ्यूचर दिखता है और बच्चों को पैशन दिखता है। तो फिर मौसी ने मुझसे कहा कि अब आप श्रद्धा तू ही बता इसको जो तुझे करना है। तो फिर मैंने उससे बस एक क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा अगर तुम 100% श्योर हो कि आगे जाके लाइफ में कुछ भी हो जाए, चाहे फेलियर हो चाहे सक्सेस हो, मैं अपने घर वालों से कुछ नहीं मांगूंगा। अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है तो गो फॉर इट, गो फॉर योर पैशन। लेकिन अगर कहीं आप 1% भी आपको डाउट हो रहा है कि आगे जाके मुझे घर वालों की जरूरत पड़ सकती है, अगर ये डाउट है अंदर 1% भी है या 0.001% भी है, तो अपने पेरेंट्स की ही सुनो। क्योंकि जब हम पैशनेट होते हैं तो इट शुड बी 100% पैशनेट। तो जब बच्चा ये कह रहा है कि आगे जाके मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा और वो बहुत पैशनेट होके ये कह रहा है, तो शायद आई थिंक उस समय उसका ट्रस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो आई कैन नॉट से, बट उस समय फिर उसको ये रियलाइज हुआ और एंड ही लिसन टू हिज पेरेंट्स ओनली, क्योंकि उसको डाउट हो गया कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो इट वर्कड। I don't know whether it was right or wrong. Honestly speaking, when I heard to the story, I think he should have listened to his heart and followed his passion, because एक successful इंसान और एक अनसक्सेसफुल कहूँ या कहीं ना कहीं जब आप को लगता है कि आप अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि जिंदगी तो सबकी चलती है, चलाते हैं हर कोई, लेकिन उसमें यही डिफरेंस होता है कि सही समय पर आपने सही डिसीजन लिया और दूसरा आपके आसपास के लोगों ने आपको ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड किया कि चलो तुम करो जो तुम करोगे, तुम फेल भी होगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, राइट। तो मे बी वो कुछ ऐसा कर जाता जो एक अभी वो जो इस पोटेंशियल को वो कर सकता था अचीव, वो पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएगा। मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने रजा मुराद साहब का इंटरव्यू लिया था। रजा मुराद साहब को आप सभी ने नाम सुना होगा। उनकी कहानियां बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानियां थी उनकी जिंदगी की, और उसमें से जो एक टेक अवे था वो ये था कि वाकई अगर उनकी बहुत माली हालात अच्छे नहीं थे, जब उन्होंने एक्टिंग के लिए सोचा और एक्टिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग लेने वो गए, उनके पास पैसे नहीं थे। उनके पापा ने उन्हें बोला कि बेटा तुम जाओ, तुम ट्रेनिंग लो। किसी तरह से वो पैसे को इंतजाम करके लाए और अपने बेटे को भेजा। उन्होंने कहा कि अब्बा मैं आपको मैं ये कोशिश करता हूँ, मैं 5 साल खुद को देता हूँ, अगर मैं कुछ कर पाया तो, नहीं तो मैं फिर कुछ नौकरी कर लूंगा, कुछ और कर लूंगा, मैं आपका हाथ बटाऊंगा। और उसके बाद तो इट्स ऑल हिस्ट्री, व्हाट ही अचीव्ड, व्हाट ही इज टुडे। पर आप सोचिए कि अगर उन्होंने उस समय उनकी परिवार ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया होता और कहा होता कि चलो तुम 2-4 हज़ार की नौकरी कर लो क्योंकि वो अभी जरूरी है इमीडिएट, तो आज आपके सामने रजा मुराद नहीं होते। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। बट मेरा मानना है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वो 100% होना चाहिए। अगर आपके मन में डाउट है कि अचीव नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो शायद हम कहीं लैक करते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस भी हमें अपने बच्चों में, अपने रिलेटिव्स में दिखाना पड़ेगा कि कुछ प्रॉब्लम हो तो हम आपके साथ हैं। और एक बात और मैं यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगी, सॉरी मैं यूरोप का पर्सपेक्टिव बार बार ला रही हूँ, बट इसमें कंपैरिजन की कोई बात नहीं है। हर देश के हालात अलग होते हैं और पूरा परिवेश अलग होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो हम सीख सकते हैं। तो इंडिया में एक बहुत हमारा हार्डकोर माइंडसेट होता है कि 15 की उम्र तक या 16 की उम्र तक 10वीं कर लेनी है, फिर इतने एज तक 12वीं कर लेनी है, फिर 21-22 साल में ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। हमने हर एक चीज को एक कैलेंडर बांध रखा है। जर्मनी में मैं देखती हूँ इट्स कंप्लीटली अपोजिट।
यहाँ पे लोग 30-30 साल की उम्र तक मास्टर्स कर रहे होते हैं या बैचलर्स ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फॉर एग्जाम्पल बैचलर्स करने शुरू किया, उसके बाद उन्हें लगा कि हमें कुछ ट्रेनिंग लेनी है, तो वो ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे, 2 साल ट्रेनिंग करेंगे, देन दे विल कम बैक एंड रिज्यूम द स्टडीज. सो द आइडिया इज दैट वट एवर दे डू विद full passion and full like perfection. So Germans perfection के लिए माने जाते हैं. उसकी वजह से खैर उसका जो डिसएडवांटेज है वो ये भी है कि एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है. मैं इंडिया से डायरेक्टली कंपेयर नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ का सोशल सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी अगर हम एक वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो मेरे ख्याल से 1 आधा साल इधर उधर से कोई इतना ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हम किसी को मौका देना चाहें. मैंने खुद अपनी जिंदगी में कई गलतियां की हैं जहां मुझे लगता है कि मैं शायद 1 साल और स्पेंड करती इस चीज की तैयारी करती, ये करती, तो शायद ऐसे होता. लेकिन फिर भी मैंने उस समय में जो भी कर सकती थी वो बेस्ट करने की कोशिश की. I was topper in all whatever courses I did and everything. But then still, I mean, sometimes life is a flow chart, right? If you go this way, then you don't know what would have happened if you had taken the other route. करेक्ट. बट फिर भी जितने आप अपने रिग्रेट्स को कम कर पाओ, और इसलिए मैं अपनी स्टोरी या कोई भी अपनी स्टोरी शेयर करता है तो हर किसी की जिंदगी में हाई एंड लो मोमेंट्स होते हैं. इट्स ऑल अबाउट कि हम और लोगों को गाइड कर सकें कि आप हाई लेवल किन किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं. तो मैं एक 4 लाइंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. ठान लीजिए तो कुछ भी नहीं मुश्किल, ठान लीजिए तो कुछ भी नहीं मुश्किल, बस अपने अंदर एक दशरथ मांझी को जगाइए. दशरथ मांझी सब जानते हैं. ठान लीजिए तो कुछ भी नहीं मुश्किल, बस अपने अंदर एक दशरथ मांझी को जगाइए. रास्ते रास्ते खुद पर्वत छोड़ देंगे एक रोज, रास्ते खुद पर्वत छोड़ देंगे एक रोज. अपनी मेहनत की छेनी बशिद्दत चलाइए, अपनी मेहनत की छेनी बशिद्दत चलाइए. माफी चाहूंगी मैम, आपके इन शब्दों को मैं विराम नहीं देना चाहूंगी. आप ही के आपको सलाम करती हुई मैं इन पंक्तियों का और आगाज करूंगी कि जीवन न कहो यदि जीव में जागरण नहीं, जीवन न कहो यदि जीव में जागरण नहीं, यश यदि अमर रहे तो मरण भी मरण नहीं. यश यदि अमर रहे तो मरण भी मरण नहीं. बहुत अच्छे, बिल्कुल सही. Thank you, Jyoti ma'am. Thank you so much. Yes, any other question? Any other child or any other mother wants to ask? Yes, anyone? Devashi is here. Ma'am, I have a question. Yes. Ma'am, yes, ma'am. How do you define success? How do you feel? Like, how will you call someone successful and unsuccessful? Wow. Which class you are in right now? Ma'am, actually, I am a teacher. Okay. Okay. It's Miss Priyanka. Yes, ma'am. Okay. Wow. You have kind of, taken me off guard. Yeah. And very, very difficult question. ये तो इस पे तो बुक लिखी जा सकती है, ये ऐसा क्वेश्चन है, राइट? बुक्स हैं कई सारी कि आप कैसे सक्सेस को डिफाइन करोगे. वेरी गुड क्वेश्चन. I won't claim to answer this question, but I would just put my opinion on the table. So I think success is very much based on your own perception. Success, the criteria of success, it is very individualistic. मेरे लिए जो सक्सेस होगी वो हो सकता है डॉक्टर शिखा के लिए ना हो, सार्थक तिवारी, श्रद्धा के लिए ना हो, मैम के लिए कुछ और सक्सेस के पैरामीटर्स हों. इसको हम अलग अलग लेवल्स पे देख सकते हैं. कुछ सक्सेस के पैरामीटर्स जो सोसाइटी ने एस्टैब्लिश किए हुए हैं. अब सोसाइटी अलग अलग होती हैं. अब अगर हम कंट्री लेवल पे देखें तो कंट्री लेवल पे कुछ पैरामीटर एस्टैब्लिश्ड हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि भाई एक सक्सेसफुल लाइफ, कि आपने पढ़ाई कर ली, आपने कोई ना कोई डिग्री ले ली, उसके बाद आप नौकरी कर रहे हैं तो अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, घर बना लिया, गाड़ी ले ली, शादी हो गई, फिर बच्चे होना भी जरूरी है, फिर बच्चों का so there are so many, so this is something never ending list. Yeah, and this list varies from culture to culture and from country to country. Agreed? Yes. Yeah. So this is the social way of looking at it. Now on an individual level,
now again, so sorry, taking a step back, this social list also applies to those who are socially conscious. अगर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है और मैं मस्त हूं अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से, तो मैं चाहे 5,000 कमा रही हूं, चाहे 5 लाख या 5 करोड़, फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता. और अलग अलग हर किसी का फिलॉसफीज अलग होती हैं. जो शायर, राइटर, मतलब हर किसी के लिए पैसा, तो अगर आप पैसे के पैरामीटर पे सक्सेस को देखेंगे तो वो भी अगेन एंडलेस है. टिल द टाइम योर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, यू नो, खाना पीना, हवा और छत मिल रही है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है. और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी फिलॉसफी है, कोई फर्क नहीं पड़ता. My daughter asked me the same question some days back, and she said that, why do we have to study? I said, to make some money, to do something and make some money. And she said, but why do we have to make money? Why is the system like this, that we have to make money? Because the ones who don't have money, they are facing so many problems. So this is not a good system. Yeah. So yeah, I mean, it's difficult to answer this question, but we still say that, okay, at least be something so that you can lead a basic life. उससे ऊपर और तो उसका कोई अंत नहीं है. तो ये सोशल लेवल पे था. इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे, आई थिंक सक्सेस इज समथिंग व्हेन यू एट द एंड ऑफ द डे थिंक दैट योर डे वेंट वेल, you did something creative and you feel like, okay, you get a good sleep because it was a productive day. I would like to link success to productivity more than money or anything else, because अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे ख्याल से जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, जो बहुत वेल्दी हैं, शायद वो हमेशा बहुत खुश होते, because success is not always related to happiness also. Correct? For me, success is when you are happy and satisfied with yourself. You realize that you have realized your own best potential, and you were able to do something which to the perfect level as per your capabilities, you know. For example, this will be a successful day for me because my teacher, whom I adore and respect so much, I think my life is successful because my teacher is proud of me. And she is presenting me as a success story. I don't know if I am or not, but she's presenting me as a success story is the success for me. And this has made almost like एक साल भर की खुराक हो गई है मेरे लिए, मोटिवेशन. हाँ, मुझे इसे बनाए रखना है, आगे चलते रहना है. So yeah, again, इसके ऊपर PhD हो सकती है, इसके ऊपर बुक्स लिखी जा सकती हैं. There is no hard and fast one single answer. But if you are able to sleep at night with a sound sleep, you made a creative day. क्योंकि आराम करने से भी नहीं होता है. मतलब कई बार कई लोग कहते हैं कि हम आराम की जिंदगी जी रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल है या आप हैप्पी हैं. नहीं, मुझे लगता है हम इंसान हैं, कितना ही बुरा से बुरा वक्त आए तो भी हम तभी खुश रहेंगे जब हम कुछ ना कुछ कर रहे होंगे. जब तक हम जिंदा हैं, हम चलायमान हैं, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, उससे लोगों को फायदा हो रहा है, तो वो एक सक्सेसफुल लाइफ है. I hope I could answer your question to some extent. Why I asked this question, ma'am, is because of the same reason that you mentioned about social level, because there are like fixed parameters on which we start judging someone that this is successful person and this is unsuccessful person. So that is why I wanted you to be tell all the parents present here to the children that you need to have your own perception of success. That what makes you live a happy, contented life in which you can reach your own potential. Yeah. So thank you, ma'am. Yes. Thank you so much. One last question I'm having. Yes. So ma'am is smiling, ma'am already knows. So as an individual, as in just individual, where do you want to reach? Not as a mother, means if we just remove all the things that are surrounding us, all our possessions and all our relations, removing that, just an individual, where do you want to reach ultimately? Yeah, I think this will be a self-realization answer for me as well, because while you ask this question and while I'm answering, I'm thinking in my head that where I want to reach. So I want to be known, widely known as a good writer, a writer that touches lives, that can influence life, and seen as a serious, writer in terms of the quality of content, not just matching of words and writing something down,
but actually something with a deeper meaning, a weightage in itself. So yeah, so yes, as a single answer, I would say that there are many things which could be attached to it. Yes, while running my company successfully, while reaching a turnover of this and that. But when the moment you asked me this question, this was the thought that came to my mind, and I think this is what my heart wants me to be at the end. Thank you so much, ma'am. Actually, I'm doing an analysis. I keep on asking this question whomsoever I meet, and I feel that a person to be admired. So I always ask this question, and I'll just write these answers in a notebook so that at the end of the day or some years after, I can just go through and find out. So thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank If you any so other much. student or any mother wants to ask any question, you can go ahead. Her time is also. Yeah, hello. Good. Yeah, hello. I'm Dr. Shivani Pandey, Devishi's mother. Hello. Hello. सही में बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के. आपको सुना तो ऐसा लगा सही में शायद मैं ही बोल रही हूँ. अंदर से फीलिंग आई. तो काफी एज अ सक्सेसफुल में जो एक स्टोरी है, आपने ये बात कही ना, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है सक्सेसफुल का. एज अ मदर, एज अ फादर, कुछ भी, एज अ कैरियर, कुछ भी है, सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट मेरे लिए. वही चीज मैं अपने बच्चों में भी डालना चाहूंगी. बट थोड़ा सा देविशी का जो नाम बार बार बोल रहे कि एक्सपेक्ट कर रहे कि देविशी बोले दोले बोले, वो मेरे लिए सारा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है कि एज अ मदर की उसको सुना जा रहा है, उसको याद किया जा रहा है, बट वो म्यूट है. उसको लग रहा है कि मम्मा नहीं है. एक्चुअली हम दोनों, वो देहरादून में है, मैं हल्द्वानी में हूँ. थोड़ा हम लोग कोविड से गो थ्रू हो रहे हैं पूरी फैमिली. देवेशी अपने फादर के साथ है अभी. तो उसको अभी लग रहा था सबकी मम्मा साथ में है, मेरी मम्मा साथ में नहीं है. एक दो बार मैंने मीटिंग भी लीव करी क्योंकि पेशेंट्स के फोन आ गए थे. तो मैं इसलिए अभी मैंने बोला कि नहीं, एटलीस्ट उसको लगे कि मम्मा यही है, कहीं गई नहीं है. तो उसको लग रहा था कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ, और शायद वो नहीं बोल रही है, शर्म आ रही है, व्हाटएवर. उसको नहीं आ रहा होगा अभी दिमाग में कोई क्वेश्चन, अभी बहुत छोटी है कुछ पूछने के लिए. तो बट इट्स रियली नाइस, थैंक्स टू मैम, बिश मैम. वो नई नई अपॉर्चुनिटीज लाती है हम लोगों के लिए, नए नए आइडियाज लाती हैं. अभी थोड़ा सा हम लोग बिजी हैं कोविड में, दोनों पेरेंट्स, मैं भी और उनके फादर भी, तो इतना ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं. तो थोड़ा मैं वो लैक कर रहा है, लेकिन बट ये भी चला जाएगा तो हम पूरी उन पे फोकस करेंगे. बट रियली इट्स टू ग्रेट. थोड़ा सा सूदिंग हो गया इस हैक्टिक पीरियड में हम लोगों के लिए कि ठीक है, हमें लग रहा है कि हाँ कुछ है, अच्छा है, कुछ अच्छा चल रहा है. तो देविशी को मैं थ्रू यहीं से बोलना चाहूंगी कि बेटा, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है. चलिए, जब तक देवेशी पूछती हैं, मैं एक कविता माँ और बेटी भी आपको सुनाती हूँ. जी और फिर हाँ जी, जिनके बेटे हैं वो प्लीज अदरवाइज ना लें, क्योंकि मैंने अपनी मदर के लिए लिखी थी, इसलिए ये माँ और बेटी है. बेटी बन जो जान सकीना, बेटी बन जो जान सकीना, माँ माँ मैंने माँ बनकर जाना. बेटी बन जो जान सकीना, माँ माँ मैंने माँ बनकर जाना. जाना मिले चाहे सारा जग, जाना मिले चाहे सारा जग, तेरी गोद सा ना कोई ठिकाना, तेरी गोद सा न कोई ठिकाना. इसी का एक अगला टुकड़ा है कि कलेजे के टुकड़ों के लिए जो कलेजा अपना चीर के रख दे, कलेजे के टुकड़ों के लिए जो कलेजा अपना चीर के रख दे, सिर्फ एक माँ के दिल में ही वो कुव्वत है. भले कितने किरदार निभा ले, हर माँ में सबसे पहले सबसे ऊपर माँ की ही मूरत है, सबसे पहले माँ की ही मूरत है. और एक आखिरी टुकड़ा इसका, आसान नहीं है एक लड़की होना, आसान नहीं है एक लड़की होना. इस दुनिया में बहुत बहुत मुश्किल है जिंदगी की हर लड़ाई, बहुत बहुत मुश्किल है जिंदगी की हर लड़ाई. पर फिर भी हर जन्म मुझ में, पर फिर भी हर जन्म मुझ में लड़की होने की ही चाह रहती है. फिर भी हर जन्म मुझ में लड़की होने की ही चाह रहती है, क्योंकि सबसे पहले सबसे ऊपर, क्योंकि सबसे ऊपर सबसे पहले मेरे अंदर एक माँ रहती है, मेरे अंदर एक माँ रहती है. बहुत सुंदर मैम. Too good, it's too good. Thank you so much. Lovely. Thank you so much.
Okay, so now I would like to hand over the charge to Miss Priyanka. Priyanka, ma'am. No, ma'am. Now- Ma'am, first you have to give me chance first. Yes, Yes, ma'am. ma'am. She will Priyanka only- after me. Okay. I can totally relate to when in this beginning, Dr. Yojana Shah said that Bisht ma'am is like an umbrella of education, and she is not only an umbrella of education for students and parents, but for teachers as well. So, after the gracious shower of words by Dr. Yojana, allow me to call the woman who is not only the prominent guide to Swasthya family to all the teachers, students, and parents alike, but has also been the mentor to our honorable speaker of the day. So please welcome the chief resource person of our school, Mrs. R.K. Bisht. Thank you so much, Priyanka. Thank you so much. What to say? My experience of last 1 year, more than 1 hour. Yojana, I am really proud of you. Really, I have noted down the points that you have just told, and I'm going to share it with Shaurya. अपने बेटे के साथ, क्योंकि शौर्य आपका जूनियर रहा है, तो मैं शेयर करूंगी कि योजना ने आज क्या क्या बताया. ठीक है, थोड़ा सा टाइम लूंगी, लेकिन उससे पहले सानवी ने जो क्वेश्चन पूछा कि हम कभी टीचर बनना चाहते हैं, कभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसके लिए शी डिजर्व्स अ प्राइज. क्लास 8 की स्टूडेंट है, और अभी अगर उसकी समझ में इतना आ गया कि हम कंफ्यूज हैं, इट्स अ वेरी बिग थिंग, वेरी वेरी बिग थिंग, है ना. एंड अ रियल मैच्योरिटी आई कैन से कि यस, वी आर अनडिसाइडेड एट टाइम टू व्हाट टू डू, वेदर टू डू दिस और वेदर टू डू दैट. यस, वेरी गुड थिंग बेटा. दिस इज अ रियली गुड साइन ऑफ growth and development. Earlier, Alankrita has also asked such type of question, ma'am, by Mr. Captain, sir. She too had asked. Yes, ma'am. So, सक्सेस का, जैसे अभी मैम ने भी पूछा था, सक्सेस का योजना ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया, और योजना का जो वाइड एक्सपीरियंस है उसके सामने मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत छोटा है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा मुझे यही लगा. देखो, योजना ने जब कहा कि मैम 30 years बैक जब मैंने पढ़ाया, तो मुझे लगा उस समय, अब हम मतलब वी हैव ग्रोन ओवर द टाइम, है ना, लेकिन उस समय भी एक फीलिंग होती थी कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर स्टूडेंट्स. तो सक्सेस में मतलब मेरा जो सक्सेस का है कि भाई, अगर आपने अपने गोल बनाया है, कोई भी गोल हो, और वो गोल आपने अचीव कर लिया, दैट इज योर सक्सेस. गोल्स कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, है ना, और इट्स अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, कैन नॉट बी डिस्कस इन अ वेरी स्मॉल टाइम. बट ये है कि बच्चों के पास अपने एम्स होने चाहिए, पेरेंट्स के पास अपने एम्स होने चाहिए, और वो एम्स पूरे हों, ऐसी कोशिश होनी चाहिए. जैसे मैं अभी आई एम गोइंग टू कंप्लीट 63 years, पर मेरा गोल अभी पूरा नहीं हुआ है. मैं जो करती जाती हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी सक्सेस नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे अभी मेरा गोल पूरा नहीं हुआ. स्टिल दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग. आई हैवंट येट रिटायर्ड, आई हैवंट येट सैट एट होम. मैं अभी घर पर नहीं बैठी हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा नहीं, मेरा अभी गोल पूरा नहीं हुआ है, और मेरे लिए मुझे लगता है कि अभी मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मुझे अभी कुछ और करना है ना. हम सब लोगों को सीखना है योजना से. देखिए कि उनका अपने देश के लिए कितना प्यार है. देखिए, वो जर्मनी में रह रही हैं, लेकिन उनका अपने देश के लिए कितना प्यार है. देखिए, वो हिंदी को प्रमोट कर रही हैं वहां पर बैठ करके. हम इंडिया में रह करके शायद हिंदी के बारे में इतना काम नहीं करते हैं जितना वो वहां पर रह के कर रही हैं. इसके अलावा वो इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को प्रमोट करने के लिए, ऐसा नहीं कि वो जर्मनी में रह करके जर्मनी के लिए काम कर रही हैं केवल, वो भारत के लिए भी काम कर रही हैं. और यही बात मेरे बेटे ने भी कही थी एक बार कि मम्मी, ऐसा नहीं है कि अगर हम कहीं विदेश में रहते हैं तो हम भारत के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम विदेश में रह के और अच्छा काम हम अपने भारत के लिए कर सकते हैं. तो ऐसा देखिए, उन्होंने अपने एग्जाम्पल से ये बताया है. और बच्चों के लिए सबसे अच्छा लेसन उनकी तरफ से, देखिए, उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि उनको रीडिंग हैबिट थी. देखिए, इससे पहले मैंने आपको कीर्ति मैडम से इंट्रोड्यूस कराया था, उन्होंने भी यही बात की थी. वो भी अपने स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट थी, उन्होंने भी यही बात कही थी कि मुझे रीडिंग हैबिट थी. तो देखिए, ये कंफर्म हो रहा है थ्रू द पीपल कि रीडिंग हैबिट एक बहुत अच्छी हैबिट है, और इट मस्ट बी डेवलप्ड. योजना, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा विश्वास गौतम सर ने, तो आपने कहा इसका आंसर आप ही बताइए. तो मैं अपने टीचर से यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ, जब बच्चा आपको प्रश्न पूछे तो जवाब मत दीजिए उसका, उससे पूछे कि देखिए आप क्या जवाब क्या हो सकता है. उसको लेट द चाइल्ड थिंक, लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर कि व्हाट कैन बी द ऑप्शंस, है ना.
एक टीचर को स्कूल में बहुत काम करने हैं और सबसे कठिन काम है एक टीचर का, सबसे कठिन काम है योजना, है ना, आई वोंट हेजिटेट टू से। और इतनी कैपेबिलिटी वी मस्ट हैव, द टीचर्स मस्ट हैव दैट मच ऑफ कैपेबिलिटी कि वी कैन सेटिस्फाई द स्टूडेंट्स। उनके क्वेश्चंस होते हैं, उनको हमें कैसे सेटिस्फाई करना है कि उन्हें हमारे आंसर से कुछ मिले, है ना, उनके पास कुछ टेक अवे हो। जहां तक गुड ह्यूमन बीइंग की हो, गुड सिटीजन की हो, यू वोंट बिलीव, हम असेंबली में हमारी प्रेयर में है कि आई वांट टू बी द वर्दी सिटीजन ऑफ द कंट्री, है ना, हमें वर्दी सिटीजन बनना है। मैं बार बार बच्चों से कहती हूँ कि देखो पहले आपको वर्दी सिटीजन बनना है। और मैं टीचर से कहती हूँ, देखिए कि हम कहते हैं कि यू हैव टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो कैसे बनेंगे बच्चे? वी शुड बी द एग्जाम्पल फॉर देम, है ना, हम कह के थोड़ी उनको अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं कि भाई अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो, अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो। दे शुड सी गुड ह्यूमन बीइंग्स इन देयर टीचर्स, है ना। जब वो अपने टीचर्स में गुड ह्यूमन बीइंग्स को देखेंगे तो वो अपने आप बनेंगे, उन्हें कहना नहीं पड़ेगा। अपने पेरेंट्स में गुड ह्यूमन बीइंग्स को देखेंगे तो अपने आप बनेंगे, है ना। हमारी मदर्स भी हमारे साथ है, हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ है। तो बच्चों को अगर हमें गुड ह्यूमन बीइंग बनाना तो पहले हमें खुद गुड ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा, लेक्चर से नहीं काम चलेगा, है ना। और दूसरा, जैसे योजना ने बताया कि किस तरह से बच्चों को वो ग्रूम कर रही हैं, किस तरह से वो बच्चों को वैल्यू सिखा रही हैं, पर घर के काम की या मनी की, ये सब हमारे लिए एक सीखने वाली बात है। बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस उन्होंने देखे, जो मैंने भी जैसे देखा कि भाई हम शर्माएं भी नहीं और इतराएं भी नहीं, है ना। कितना अच्छा एक्सप्रेशन है, देखिए जो मुझे आज तक नहीं मिला, और अब हो सकता है मैं आगे से कहीं पे कोट करूं, है ना। अब देखिए ये शब्द ऐसा हम सब जानते हैं, शर्माएं शब्द भी हम जानते हैं, इतराए शब्द भी हम जानते हैं, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन जैसे योजना ने बनाया है ना, कि भाई हमें अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हम शर्माएं भी नहीं, और अगर हमें बहुत ज्यादा बहुत कुछ आता है तो हम उस पर इतराएं भी नहीं, है ना। मेरा बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था, बाहर है, अमेरिका में है, तो उसके एक पड़ोसी हैं वहां पर, वो नॉर्थ इंडिया से हैं। तो उनका बच्चा क्लास 4th में पढ़ रहा था जब मैं मिली थी, तो उन्होंने अपने बच्चों को रामायण और महाभारत की किताबें लेके दे रखी थी घर में, और उन बच्चों को पूरी रामायण महाभारत और जो हमारी कहानी, पौराणिक कहानियां हैं, वो बच्चों को पता थी। वो कहते मैम इनसे आप कहीं भी पूछ लीजिए, जबकि बच्चे हिंदी नहीं बोल रहे थे, इंग्लिश में ही उन्होंने किया था, लेकिन हिंदी समझ रहे थे। लेकिन वो वहां जाकर भी भूले नहीं अपने कल्चर को, है ना, और अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपने बच्चों को बता रहे हैं कि द कल्चर वी बिलोंग टू, द कंट्री वी बिलोंग टू, इट्स रियली वेरी गुड थिंग। और यही एक पहचान है, देखिए एक व्यक्ति की, एक सक्सेसफुल व्यक्ति की यही पहचान है कि वो ये नहीं है कि अपनी ओनली अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए काम कर रहा है ना, वो वर्किंग फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, वर्किंग फॉर द पीपल ऑल्सो। बहुत अच्छी अच्छी बातें योजना ने कही, मैंने सारी की सारी चीजें नोट की हैं, इस समय उसका समय नहीं कि मैं उनसे फिर से पूरा रिकैप करूं, बट रियली थैंक यू सो मच। और हम सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है आज यहाँ से, और रियली हम लोग फॉर्चुनेट हैं, हम लोग रियली फॉर्चुनेट हैं कि हमारे बच्चे आज हमको सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों से सीख रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स ऐसी पोजीशंस पर हैं कि हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। मुझे ध्यान आया योजना का, अभी योजना के इंटरव्यू, मैंने योजना आपका जो इंटरव्यू था इंद्रमणि पांडे जी वाला, वो मैंने पेरेंट्स को सबको भेजा है, और मैंने उसको पूरा वर्ड टू वर्ड सुना है। मैं शौर्य से भी शेयर कर रही थी कि देखो योजना इतने अच्छे प्रश्न पूछ रही थी, और इतना कैंडिड शो, इट्स नेम इज कैंडिड, इट वाज ट्रूली कैंडिड, इट वाज ट्रूली कैंडिड, कि शी वाज नॉट फंबलिंग फॉर द वर्ड्स, फॉर द क्वेश्चंस एंड ऑल। पूरा इंटरव्यू मैंने वो देखा है, तो रियली आई फेल्ट रियली प्राउड कि दैट देयर आर चिल्ड्रन हु आर डूइंग सो वेल, है ना। और ये हमारे लिए रियली सबसे प्रेशियस मोमेंट होता है। टीचर्स की जो प्रॉपर्टी है वो यही है। आज देखिए मैं 63 इयर्स पर मुझे आज ये एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, अगर तो इसके लिए वी हैव वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। कई बार हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा है या वो नहीं मिल रहा। काम करते जाइए, आपको मिलेगा। इफ यू डिजर्व यू विल गेट, डेफिनेटली विल गेट, बट वी मस्ट हैव सम पेशेंस, है ना। और काम करते रहें, जो आप डिजर्व करते हैं, जो हम डिजर्व करते हैं, वो हमें हमेशा मिलता है। हम जो लोग अपनी कहीं ना कहीं किसी तरह से अपने को प्रूव कर रहे हैं इन एनी फील्ड, वी मस्ट keep on reading about those people, we must keep on knowing about those people, जो great persons हैं, उनके बारे में सुने, पढ़ें, तो कुछ ना कुछ हमारे ऊपर अपने आप से छूट जाता है, अपने आप से आ जाता है जब हम great people के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो ये that was the purpose कि मैं आज आपको डॉक्टर योजना से मिलाऊं, और हमें कुछ उससे टेक अवे मिले, कुछ इंस्पिरेशन मिले। और इस तरह से अगर हम इस तरह कंटिन्यू करते रहेंगे, अभी मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, रियली एंड कनेक्टेड टू मी ऑल्सो, तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनकी सर्विसेज लूं, अपने बच्चों को अब मेरी जगह पर वो इंस्पायर करें, जैसे आई यूज्ड टू इंस्पायर, नाउ दे विल इंस्पायर।
है ना, मेरी अभी एक स्टूडेंट है, तो मैंने उसको बोला, अभी उसने एक सेशन लिया था हमारे बच्चों के साथ, तो मैंने कहा बेटा आप क्या उस दिन, क्योंकि इट वाज हाफ एन आवर असेंबली का टाइम था, सफिशिएंट टाइम नहीं था, तो मैंने कहा बेटा क्या आप स्पेयर करोगे टाइम? कहेंगे मैम दिस इज द वे टू गिव बैक टू माय टीचर्स। उस बच्ची ने ये कहा कि बिल्कुल मैम, व्हेनेवर मतलब यू कॉल मी, आई विल बी देयर, मतलब आई विल बी अवेलेबल टू देम डिजिटली, एंड ये मेरा, दिस इज माय वे ऑफ गिविंग बैक टू माय टीचर्स, है ना। So really, God bless you, Yojana. In future also, whenever time will be there, not so early, but whenever time will be there, we'll be in touch with you. And you too will be really glad, will be proud that you could just pass on something to the students, to the mothers, to the parents, out of your experience, right? God bless you, Yojana. God bless you. May you have all the successes that you aspire for in your life. May you have everything in your life. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thanks to everybody for listening to me. And thanks for the invite. I will really look forward to any such similar future interactions as well. Till then, stay safe, stay home, and make the best use of this homestay time as well. This is giving another kind of opportunity of bonding with the family and doing self-study and many other things, you know. So let's make the best out of it. Vote of thanks is there from Priyanka ma'am. So please. Honorable Mrs. Yojana Shahjahan, esteemed director ma'am, all the parents, teachers, and our beloved children. So I've been given the privilege basically to extend the vote of thanks. So ma'am, I, on behalf of entire Swastyan family, which does not only include the staff, but also our parents, encouraging parents and enthusiastic children. So on all of those behalf, I would like to extend our deepest gratitude for being with us, for gracing us with your words, ideas, and time. And I must really, I think I should emphasize on your explanation of gifting a dream to your parents, becoming a better citizen. That was a really great idea. And the idea that you put forward regarding entrepreneurship, I must say that I found it valuable. So I think the students must have found it valuable too. So we are really grateful for your insight. And in the end, I would also like to put on record a sincere gratitude, a sincere thanks to all the people who have come forward or who have because of whom this event was able to be managed. So thank you everyone for being a part of this seminar, this digitally enthusiastic Sunday. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thanks a lot. And especially thanks to Gautam sir. Thank you so much, sir, for being there. Pleasure is all mine. Pleasure is all mine. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you, Yojana ma'am. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. So Shraddha, I'm closing the meeting now. Okay, sir. Yes, sir. You can go ahead. Thank you.